Listen, students, I am Dr. Arvind Kumar. Going to start the topic types of cost in the paper Cost Management of Engineering Project. Whenever one see about the cost, then all the costs are not the same. There are so many costs, and you have to know one by one to all, which is very important in cost management. Without differentiation of the cost, you cannot understand cost management very well. So let us start type of cost. First is fixed cost or sunk cost. What is mean by it? The costs incurred in establishing any business such as land, building, plant, machinery, etc. is so-called sunk cost or fixed cost. This is establishing cost of any business under which there is a work of installations happens, land are purchased or take in lease, buildings are created or hire, plant, machinery, etc. These are the establishing costs. Without any business where the raw materials will be processed, then there is a arrangement of machinery, plant, building, such things are essential to set up a business. हवा में कोई बिजनेस तो होते नहीं है, ये धरातल, ये सत्य है कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब चीजों पर आपको व्यय करने होंगे. These are the establishing cost to install a business. And it is also called sunk cost because so many monies are here sunk. So is it clear what is meant by fixed cost or sunk cost? Now second one is variable cost. After installations of the plant, machinery, factories,
whenever the production is being started, there is needs of working capital, the required the need of raw material, payment for labors, payment for power. If lands and buildings are on the basis of hire purchase, the rent, payment of taxes, transportations, maintenance of the plant, machinery, etc. After installation of the any business plant, these costs are evident in the course of productions. Not only it is working capital. So variable cost working capital such as the raw materials, rent of building, land, power, electricity, payment of tax, wage, transportation, cost, maintenance, cost of the plant, machinery, etc. Now third one is the total cost. That is meant by total cost. In concise manner, fixed cost plus variable cost is total cost. Fourth, average total cost of a product. Average total cost of a product. Is equal to total cost, means fixed cost plus variable cost divided by number of products. फिक्स कॉस्ट जो भी है और जो वेरिएबल कॉस्ट, जो वर्किंग कैपिटल जो है, वो दोनों को जोड़ करके किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कितने प्रोडक्ट जो है वो बनाए गए हैं, उससे उसमें भाग कर देने से एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है. Now fifth, average total cost of a product on variable cost. Average total cost of product on a variable cost. Here the fixed costs are not considered. Only variable costs are in considerations. Is equal to total variable cost divided by number of products. इसमें फिक्स कॉस्ट जो है उसको हम जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट पर जो है टोटल कॉस्ट क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी है उसको जो है भागा दे देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से. Now sixth, opportunity cost. What is mean by that? Opportunity cost. Cost of alternative use of resources such as to rent the land of business,
and get money on this behalf of, or lease the building of the business and get rent on this behalf, etc. Here, the one line is very important: the cost of alternative use of resource. A resource have so many alternative usage, such as land. Lands are so many alternative usage, either to cultivate it and involve it in agriculture, either to install a school there, either to install a factory there, either to install any other organizations. There are so much alternative uses of the land. Land is a resource, and there are so many alternative uses of the land. So there is an opportunity here to use this in alternative way. So it's so-called opportunity cost. जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ जमीन है, उस जमीन को उसने जो है किराए पर लगा दिया, पैसे आने लगे, लीज कर दिया, पैसे आने लगे। कुछ बिल्डिंग है उसको किराए पर कर दिया, उससे पैसे आने लगे। उसमें कोई दूसरा काम शुरू कर दिया, उससे पैसे आने लगे, या कोई दूसरा बिजनेस ही उसमें शुरू कर दिया। तो देयर इज ए अपॉर्चुनिटी टू यूज द रिसोर्सेस इन अल्टरनेटिव वे and to fetch the money, to get profits. So there are opportunity to alternative use of any resources for a businessman. That's why this cost is called opportunity cost. Means cost of alternative use of resources. Seven, marginal cost. What do I mean by that marginal cost? Additional cost incurred to produce additional one output or one product in event of production is called marginal cost. प्रोडक्शन के काम हो रहे हैं, उसमें एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट जो है आता है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है. टू प्रोड्यूस ए एडिशनल सिंगल आइटम, द कॉस्ट इनकर इज सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. Now eighth is incremental cost or differential cost. The name itself reflects somewhat its meaning.
incremental cost or differential cost. The change in cost due to change in the level of activity or pattern or technology or process or method of production. Whenever any business organization want to change pattern of productions, technology, process in the course of such, there are needs of additional resources such as new machinery, expert human resource, installation cost, transportation of machinery. So there is a change, and change needs some cost. Every change needs some cost. You are making change, there is a need of money, resources. Without money, resources, you can't get change. प्रोडक्शंस का जो तरीका है उसमें सुधार करना है, मशीनरी लानी है, नए जो है एक्सपर्ट को बहाल करना है, उसको इंस्टॉल करना है, पुराने मशीनरी को हटाना है, इसमें तो खर्चे तो आएंगे ही ना। तो इसी तरह के जो खर्चे होते हैं उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। रिलेवेंट कॉस्ट, 9th, रिलेवेंट कॉस्ट, the recent cost incurred in relation to any business decision. The previous costs are irrelevant here in such decision called relevant cost. Any cost which is relevant in the recent requirement, instant requirement, in relation to any business, then this cost is called relevant cost. Here, other cost, the previous cost is irrelevant in decision making because emphasis is on that recent, instantaneous, recent challenges. Where decision is oriented on recent challenges and the cost incurred in this is so-called relevant cost. जैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तत्कालिक जो आवश्यकताएं हैं अमुक 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 मुद्दे पर, तत्कालिक, रिसेंट, तो ये जो
तात्कालिक आवश्यकताएं हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, बिजनेस से बाहर की बातें जो है वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं कही जाएगी। बिजनेस से जुड़ी हुई जो तात्कालिक बातें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको सामना करने के लिए जिस कॉस्ट, जिस खर्चे की आवश्यकता होती है, जिस पैसे की आवश्यकता होती है, रकम की आवश्यकता होती है, उसको रिलेवेंट कॉस्ट कहा जाता है। वो पीछे का जो अन्य जो खर्च है वगैरह है वहाँ रिलेवेंट हो जाता है। सामने चुनौतियाँ हैं, उसका सामना करना है। द थिंग्स इज इन प्रायोरिटी, प्राथमिकता में है वो। जैसे कहीं ब्रेकडाउन हो गया, मशीन में कोई खराबी आ गई, तो अभी सामने की सबसे बड़ी चुनौती तो है कि उस मशीनरी को सही करना है। डिस्पाइट द फैक्ट इट इज मेंटेनेंस, बट इट इज सो कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि वहां तात्कालिक आवश्यकता है। ये अदर थिंग्स आर इररिलेवेंट because there is some, because there is challenges before any business organizations, and to cope up the challenges, whatever be the cost relevant to the business is so called relevant cost. Here other costs are irrelevant because there is challenge, तात्कालिक आवश्यकता है। Incremental cost, same as differential cost but incremental in nature, such as extra project establishment cost to enhance the business activity. Incremental cost is same as differential cost but incremental in nature, such as extra project establishment cost to enhance the business activity. ये इंक्रीमेंटल नेचर का होता है। प्रकृतिवादी प्रकृति का ये कॉस्ट होता है। प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, डेवलप करना है। सो इट इज समटाइम्स कॉल्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, बिकॉज on the basis of such cost, one business organizations enhance its business activities, वो प्रगति करेगी। So such type of cost is called incremental cost. So here the type of cost is ended. Now the other short topic is what is meant by revenue in economics or cost management. What is meant by revenue in economics or cost management? रेवेन्यू का नाम तो बहुत कुछ सुना होगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है, भू राजस्व है, तो
विभिन्न तरह के रेवेन्यू जो है वो है, भू राजस्व है, गवर्नमेंट एक्सचेकर्स है, अन्य राजस्व भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू, उसका एक अपना विशेष अर्थ है, एक स्पेसिफिक उसका मीनिंग है। रेवेन्यू मीन्स व्हाट इज सोल्ड आउट, इट्स रिसिप्ट इज सो कॉल्ड रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स और कॉस्ट मैनेजमेंट। As for example, a business firm sold out 1 lakh of product in a year, then gross earning from 1 lakh sold out product is so called revenue in a year. जो भी हमने माल बेचा, अब उधारी पर माल जो बेच दिया और पैसा उसका नहीं निकल पाया, डूब गया, तो वो रेवेन्यू नहीं होगा। रिसिप्ट उसका होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। तब वो रेवेन्यू हुआ। उधार का माल जो है वो कभी कभी डूब भी जाता है, पैसे नहीं लौटते हैं, पूंजी तक डूबते हैं। तो जब उसकी प्राप्ति ही नहीं होगी तो उसको रेवेन्यू कैसे मानेंगे? उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे। सो हियर द रिसिप्ट इज इंपॉर्टेंट। Whatever you sold out, it should be received. In terms of money. So, on the point of view of economics and cost management, revenue means whatever you sold out in the market, the receipt of is so called revenue. जो हमने बेचा और उसकी जो प्राप्ति हुई वो रेवेन्यू कहलाएगा। Is it clear? Now, the next point is what is break-even point. ये बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने वाला टर्म्स है, ब्रेक इवन पॉइंट। और कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में तो ये जो है टर्म्स जो है वो छाया रहेगा, इसलिए इस टर्म्स को जानना जरूरी है। अन्यथा जो है कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो समझने में जो है बहुत परेशानी होगी, नहीं समझ में आएगी। बताना पड़ेगा उस जगह पर कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं। The point where total revenue or the total sale of the product in a business is equal to the total cost, fixed cost, variable cost. It is so called break even point. किसी बिजनेस में जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वो जब जो माल आप बेचते हैं, बेचते 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 एक समय ऐसा होता है कि
आपने जो माल जो बेचा और उसका सम टोटल जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है जोड़ने पर। वो एक दिन में नहीं होता है, लगातार जो है बिजनेस जब चलते रहते हैं, उसके प्रोडक्ट बिकते रहते हैं, तो एक समय ऐसे आते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इतने दिन तक जो भी लगे हैं वो बराबर हो जाता है जो आपने जो है बाजार में जो चीज़ें बेची हैं, प्रोडक्ट जो आपने बेचे हैं, उसके सेल से जो आपको आमद जो है प्राप्त हुई है वो दोनों ही बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय में जो पैसा आपने लगाया वो पैसा जो है एस्टेब्लिशमेंट में जो पैसा आपने खर्च किया, फिक्स कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल, वो दोनों ही जब सेल से जब वापस होते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है कि दोनों ही बराबर हो जाता है। आपने जो एस्टेब्लिशमेंट में खर्च किया, वर्किंग कैपिटल लगाया, तो ये खर्च जो है एक समय के बाद जो आपने बेचा उससे ये खर्च उससे जो आमद आपको हुई वो दोनों ही बराबर हो जाते हैं। इसी बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। This is the point where investment either in the fixed cost or variable cost, if it is supposed to be loss, is compensated by sales of the product. So this is the point of no loss, no gain. बिजनेस में जो पैसा आपने डाला एक तरह से समझिए कि वो लॉस है। आपको पैसे लगाने पड़े, पैसा लगाना इतना आसान थोड़ा ही है, उसके लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, जमीन जायदाद बेच देने पड़ते हैं, गहने तक बेच देने पड़ते हैं, घर मकान गिरवी रख देनी पड़ती है। तो इतना कष्ट सह करके आपने पैसा बिजनेस में लगा दिया, इसीलिए कि एक दिन हमारे प्रोडक्ट का जो सेल्स होगा उससे ये जो हम अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो है उसका रकम जो है निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बिकते 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 एक समय ऐसा आता है कि भगवान के दया से जो है, अब भगवान के दया से इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई बिजनेस सफल हो कि वो ब्रेक इवन पॉइंट को प्राप्त करे, जहाँ की बिजनेसमैन को जो है जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लौट आता है। इस सब में ईश्वर की ही कृपा होती है और अपना कर्तव्य होता है। कभी कभी कर्तव्य करने के बाद भी ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले ही जो है बिजनेस जो है बंद हो जाता है, घाटा हो जाते हैं।
ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है, यही जो है बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो आए हैं, वो जो है लौट आते हैं जो है सो व्यवसायी के पास। सो दिस इज नो लॉस नो गेन पॉइंट। अरे आपने जो लगाया था वही तो आपको आया है हाथ में बिजनेस करके। अब इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तब अब जो है सो आपको जो है लाभ की स्थिति होगी। अभी तो आपके हाथ में आपकी पूंजी जो है वो लौट के आई है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो लौट के आई है, जिसमें फिक्स कॉस्ट है और उतने दिन तक जो प्रोडक्ट को जो बेचा उसमें लगा हुआ वर्किंग कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो अब आपके हाथ में आ गई है। जो भी फिक्स कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट था, उतने के बराबर जो है आपको जो है बिक्री से जो है, आपके प्रोडक्ट की बिक्री से वो रकम आ गए हैं। तो वो जो जिस बिंदु पर जो है ये पूंजी का लौटना होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। एंड दिस पॉइंट इज सो कॉल्ड नो लॉस नो गेन पॉइंट। यहाँ न लाभ है न हानि है, आपकी लगी हुई पूंजी ही आपके हाथ में आई है। अब इसके बाद अब लाभ शुरू होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा सा ग्राफ पर भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, जिस पर आपने कॉस्ट को जो है प्लॉट किया है, और ये एक्स एक्सिस है जिस पर सोल सेल्स वॉल्यूम और आउटपुट या प्रोडक्ट का नंबर आपने प्लॉट किया है। अब देखने की बात है कि एक बिंदु ऐसा है ये जहां की आपका संक कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। ये जो पोर्शन है ये संक कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट वो जैसे जैसे स्पैन ऑफ टाइम के साथ वो स्थिर रहेगा। फिक्स कॉस्ट जो है वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, इसलिए कि ये फिक्स्ड है। आपका प्रोडक्शन जो है वो होगा तो उसमें आपका जो फिक्स कॉस्ट जो है वो तो आपका जो है एक बार जो लग गया है तो आमतौर पर जो है उसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये एक मान के चलिए कि फिक्स कॉस्ट जो है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। ये फिक्स कॉस्ट पैरेलल रहेगा आपको सेल्स वॉल्यूम आउटपुट प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बातें की आवश्यकता है
कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वर्किंग कैपिटल, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है वो शुरू होता है, जीरो से शुरू होगा जब प्रोडक्शंस, ठीक, प्रोडक्शंस के पहले जो है वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होता है। ये जीरो से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो शुरू होगा, और जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम जो है बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, वैरी करते जाएगा, इसलिए इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक लाइन जो है, ये आपको ग्राफ पर जो है ये वेरिएबल कॉस्ट का एक लाइन जो है आपको कहीं जो है वो रहेगा, और ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन जो है वही रेवेन्यू का लाइन है। वेरिएबल कॉस्ट आपका जो लाइन है वही जो है रेवेन्यू का लाइन है, इसलिए कि सेल्स वॉल्यूम आपके बढ़ रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, बाजार में बिक रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट लाइन जो है वही लाइन रेवेन्यू लाइन होगा। आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो लग रहा है प्रोडक्शंस में, और प्रोडक्शंस के बाद माल जो है बाजार में बिक रहे हैं, आप को जो है जो बिक रहे हैं उसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो है प्राप्त हो रहा है, मोटा मोटी आमदनी जो है उसका आपको मिल रहा है। उस आमदनी के अंदर बहुत कुछ है, नेट प्रॉफिट फिर जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक ग्रॉस प्रॉफिट आपको तो आ रहा है। तो जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सो वो रेवेन्यू लाइन भी जो है उसी तरह से बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट के ही दिशा में जो है आपका रेवेन्यू लाइन भी बढ़ेगा। अब यहाँ मान कर चलना चाहिए कि जो भी माल बिक रहे हैं तो उसका सबका जो है जो आमद है वो बिजनेसमैन के पास आ जा रहे हैं, कहीं डूब नहीं रहा है, रिसिप्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं बिक रहे हैं और उसकी आमद बिजनेसमैन के हाथ में आ रही है, डूबने वाली स्थिति नहीं है। ये सब अजम्पशंस है, इस सब अजम्पशंस के अंतर्गत ही जो है ये सब बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट लाइन है वही रेवेन्यू लाइन है। अब ये लाइन जो है इस जगह पर जो है ये फिक्स कॉस्ट लाइन को काटती है, दोनों एक जगह हो जाते हैं, कॉमन पॉइंट है ये जगह। तो ये जो है सेल्स वॉल्यूम जो है इतने दूर का, वो इसको रुपए में भी जो है आप व्यक्त कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, इन रुपीज। तो ये जब सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज जब
बराबर हो जाते हैं, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं, यही फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो यही नहीं वो बिंदु है जहां की जो संक कॉस्ट था और जो वेरिएबल कॉस्ट था वो दोनों जो है सेल्स से जो है लौट के जो है या पूंजी जो लगाई गई है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वो लौट कर फिर से बिजनेसमैन के हाथ में आ जाता है। वो यही बिंदु न है जहाँ की फिक्स कॉस्ट लाइन को जो है वेरिएबल कॉस्ट लाइन या रेवेन्यू लाइन जो है वो काटती है। तो यही बिंदु जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके नीचे ये जो है जोन जो है आपको ये लॉस जोन है। इधर किसी भी पॉइंट पर जो है वो बिजनेस में वो लगा हुआ पूंजी जो है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों का योग वो बिजनेसमैन के हाथ में जो है नहीं आए रहते हैं, उसे लॉस हुआ रहता है। इस बिंदु के बाद ही वो स्थितियां आती हैं कि जब उसको प्रॉफिट होने लगता है, और ये ही जो जोन है उसको प्रॉफिट जोन कहा जाएगा। ये प्रॉफिट जोन है, इसमें बिजनेसमैन को जो है वो लाभ होता है, उसका बिजनेस लाभकारी कहा जाता है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये ग्राफ से क्लियर हुआ। अब उसमें कुछ जो है बिंदु है उसको थोड़ा समझा जाना जरूरी है। वेरिएबल कॉस्ट is equal to raw materials, labor, rent, power plus other overheads and expense other than fixed cost. ये सीधा सीधा जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है आप उसको जो है नटसल में कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, पावर and others overheads and expenses other than fixed cost, fixed cost के अलावा जो अदर जो ओवरहेड और एक्सपेंसेज हैं इसके अंतर्गत रहते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो चीज़ें रहती हैं रॉ मटेरियल्स, लेबर, रेंट, पावर, ओवरहेड्स अदर देन फिक्स्ड कॉस्ट। Now variable cost line implies revenue line. जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो भाई रेवेन्यू बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं, माल बन रहे हैं, बाजार में माल जा रहे हैं, बाजार में माल बिक रहे हैं, तो ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंप्लाइज रेवेन्यू लाइन। इज इट क्लियर? सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सो कॉल्ड रेवेन्यू। पहले भी रेवेन्यू हमने समझाया है, यहां भी समझ लीजिए।
Variable cost increases implies increase in revenue और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अरे भाई, वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्यों बढ़ोतरी हो रही है? इसलिए कि प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वर्किंग कैपिटल लग रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लग रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं, उधर से आमद है, पूंजी लौट रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज इंप्लाइज इंक्रीज इन रेवेन्यू और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट ही है जो इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्शन हो रहे हैं, माल बिक रही है और बिजनेसमैन के पास जो है पूंजी जो है लौट रही है, जो उस बेचारे ने लगाया था, जो है एस्टेब्लिशमेंट में जो पैसा उसका संक किया हुआ है, मशीनरी में, एस्टेब्लिशमेंट में, बिल्डिंग में, लैंड में, जो उसने उसका पैसा संक कर गया है, वो लौट रहा है रेवेन्यू के जरिए। नाउ फाइनली, break even point means total revenue is equal to sunk cost, fixed cost. So this is a graphical representations of break even point, and this break even point is very frequently used in economics and cost management, very frequently, and there are so many curves against break-even points would be drawn to understand the business activities of business, process of business. There are so many lines, curves to understand the economics of a business, the cost management of any business. From that point of view, this break-even point is very essential to know. Whenever you install any business, you calculate your break-even point, where you are, either in loss or in profit. And according to that break-even point, any business organizations take decision. What is the position of business organizations, whether it in loss or in profit? What strategies should be taken to improve the situations? All the things are based on break-even point. This is one of the measures of control in business activities. इससे नियंत्रित किए जाते हैं व्यवसाय को। इसके आधार पर जो है बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, सुधारात्मक कार्य इसके आधार पर किए जाते हैं,
स्ट्रेटजी इसके आधार पर बनाई जाती है, जो कि आप आगे जो है पढ़ेंगे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो इस लिहाज से जो है एक कितना जरूरी एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको आप समझ सकते हैं। एक बिजनेसमैन की लगाई हुई पूंजी उसके हाथ में लौटती है, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, उसको समझा जाना, उसके बारे में अपना जो कंसेप्ट है उसको सही रखना। Without the analysis of break-even point, no one business analyze his position where it is and where it had to go. So all things are here over in this context. Now I am going to end this class, and later on the other things in other classes. Okay, thank you.